Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. Today we are going to learn Prose 1 from grade 11 Hindi reader textbook of Tamil Nadu State Board. So what is the name of that prose? Prose means gadya. So पहला गद्य ये आपका है टॉलस्टॉय फार्म. टॉलस्टॉय फार्म. टॉलस्टॉय फार्म. So let's see what is there inside this prose. गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. वहां उन्होंने देखा कि प्रवासी भारतीय अंग्रेजों के शासन में कष्ट उठा रहे हैं. उनको समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह करने लगे. So Tolstoy farm specifically here in this prose all the things are written about Gandhi ji and how he fight for the people who are residing in South Africa, mainly the Indians who was staying in South Africa, and how they are tortured by that government, and how Gandhiji raised the voice, and how Gandhiji established the Tolstoy farm there. This is all about the prose. So once upon a time, what happened for though you know that Gandhiji was a lawyer, so to take one case, he went to South Africa. So after reaching in South Africa, what he saw that who were the Indians who were staying, who were residing in South Africa, they are tortured by the South African government very much. So there will be some differentiation between South African people and Indians. So the rights those South African people they are having, the same rights the Indians are not having who are staying there. So to give those Indians equal rights like their normal citizen, Gandhiji raised his voice. So उन्होंने गांधी जी वहाँ पे जाके उन्होंने सत्याग्रह करने लगे. गांधी जी जब देखे कि जो प्रवासी भारतीय वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पर अंग्रेज शासन कर रहे हैं, और अंग्रेजों के शासन में क्या होता है कि इन्हें समान अधिकार नहीं दिया जाता. जो साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के लोग होते हैं उन्हें जितना अधिकार मिलता है वो समान अधिकार यहाँ के रहने वाले भारतीयों को नहीं मिल रहा है. तो उन्हें समान अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी वहां पर आंदोलन छेड़ देते हैं. So though Gandhiji has raised his voice against this thing, so definitely he has to form a group. In that group, some people will be joined. So सत्याग्रहियों के रहने के लिए, सत्याग्रहियों का मतलब क्या है, जो गांधी जी जो सत्याग्रह चला रहे थे प्रवासी भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए, तो उस मिशन में गांधी जी के साथ दूसरे भारतीय भी जुड़ने लगे. तो जो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहा है, whoever participating in that fight in that mission, those are known as सत्याग्रही. जो सत्याग्रह में भाग लेता है उन्हें सत्याग्रही बोला जाता है. तो जो कि सत्याग्रह में भाग लेने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे हैं, तभी क्या होगा, तो उनके रहने के भी कोई प्रबंध होना चाहिए. Because though they are gathering together, they have to stay together to make the success, to get the success in that mission. तो सत्याग्रहियों के रहने के लिए गांधी जी ने एक आश्रम खोला और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, टॉलस्टॉय फार्म. सो ये टॉलस्टॉय फार्म 100 एकड़ की थी. मतलब लैंड एरिया वाज
100 acre. So in that 100 acre, Tolstoy farm was established, and in that Tolstoy farm, all the Indians who are in this mission with Gandhiji, they were started to staying there. उसमें कुछ फल के पेड़ थे, एक छोटा सा झरना भी था. झरना means spring. So inside that farm, so many trees are there, and in that trees so many fruits are also available. Apart from that, one small spring was there inside this farm. गांधी जी ने आश्रम के लिए कुछ नियम बनाए. आश्रम में नौकरों से काम नहीं लिया जाएगा, यह पहला नियम था. तो generally, normally when we are planning something, some agenda we have to follow, some rules, regulation we have to follow. Similarly, here also Gandhi ji, whenever he established this Tolstoy farm, जब उन्होंने इस आश्रम की नींव रखी, जब गांधी जी ने ये टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम बनाया दक्षिण अफ्रीका में, तो वहाँ पे जो भारतीय उनके साथ जुड़े, जो सत्याग्रही लोग उनके साथ रहे, उनके लिए कुछ नियम बनाए. क्योंकि जब हम कहीं पे इकट्ठा रहते हैं तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है. और अगर कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशंस नहीं होगा तो क्या होता है कि एक तरह की डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं. अगर कोई कुछ बोलता है, someone saying something, another person also opposing that thing, so that should be a proper rule and everyone has to follow that rule. So what was the first rule? पहला नियम क्या था कि आश्रम में नौकरों से काम नहीं लिया जाएगा. So नौकर means servant. So there should be no servant will be there, and nobody will tell them to do any work. उनसे कुछ काम नहीं करवाया जाएगा. किनसे? नौकरों से. और स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग रखा जाएगा. So there should be different area inside that farm for ladies as well as gents. So स्त्रियों का कमरा और बाकी रहन सहन की जगह वो अलग रहेगा, पुरुषों के लिए अलग जगह रहेगा. इसलिए मकान भी अलग अलग और दूर दूर बनाए गए. So for that also whatever the building constructed there, so separate building constructed for the female person, separate building constructed for male person. So and those buildings are separated and they will be quite far away from each other. टॉल्स्टॉय फार्म में टॉल्स्टॉय आश्रम में Hindu, Ishai, Musalman सभी थे. That means this particular farm, Tolstoy farm, is not particularly for any religion people. Here Hindu people also are available, Ishai, Muslim, so everyone is allowed to stay here. गांधी जी स्वयं शाकाहारी थे और उसी के पक्ष में थे. शाकाहारी means vegetarian. So Gandhi ji was pure vegetarian, and he always also support that vegetarian we should vegetarian. So ये उनका मत था, क्योंकि वो खुद मांस मछली कुछ नहीं खाते थे, मांस मछली कुछ नहीं खाते थे, और उसके पक्ष में भी थे कि ये सब नहीं खाना है, क्योंकि इससे सेहत, ये सब सारे चीज सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं. ये गांधी जी का सोचना था. मगर अन्य लोग मांसाहारी थे. So Gandhiji was not taking non-veg, but who was residing inside that farm, Tolstoy farm, most of the people among them was non-vegetarian. So गांधी जी ने उन लोगों से बहस किया और समझाया, तो वे शाकाहारी भोजन खाने के लिए तैयार हो गए. So what happened? तो गांधी जी was not taking non-veg, and he also was very supportive about this thing. अपने मत में वो अटल थे. तो उन्होंने क्या किया, सबको समझाया कि देखो शाकाहारी भोजन अच्छा रहता है, आप मांसाहारी भोजन खाओगे तो
कुछ आपके लिए लाभ नहीं होगा. So after discussing all these things, so most of the people, they are ready to take the veg food. खाना पकाने का काम बहनों का था. बहनें means those female people, the ladies who are staying inside that farm. खाना पकाने के, to cook the food, it was a work of those ladies. और उन्हें बहन कहा जाता है. They are just considered as sisters. फिर भी सहायता के लिए दो पुरुष रखे गए थे. तो ladies or sisters are going to make food for everyone, for each and every person who are residing inside that farm. Still, two gents were alerted to help these ladies. सब अपने अपने बर्तन साफ करते थे. So whoever taking the food, and they should clean their plates. सार्वजनिक बर्तन साफ करने के लिए बारियां मुकर्रर कर दी गई थी. सार्वजनिक बर्तन means usually we are taking food and plates, bowls and everything. So those are only one person is going to have food on these things. But all get together in those pots, in those vessels where the cooking done, rice and gravy, dal. So those are known as common vessels. So those common vessels, to clean those common vessels, some persons were appointed. शराब तंबाकू आदि आश्रम में बंद था. So alcohol and tobacco was fully prohibited inside that farm. सबने मिलकर मकान बनाए. जो आश्रमवासी सैर करने के लिए जोहान्सबर्ग जाना चाहते थे, वे सप्ताह में एक बार जाते थे. So all together, all the persons get together, they make the building, and those Tolstoy farm people who wants to go for Johannesburg, they have to go once in a week. वे पैदल जाते थे और उसी दिन लौटते थे. And who are going to Johannesburg, there is no way to travel through any vehicle or something. They have to they are full pedestrian. They have to walk and they have to return on the same day. आश्रम के कोने में जमीन पर एक गड्ढा खोदा गया था. So on the corner of this particular farm, one big hole was there. So in that hole, what happened? All the garbage, all the wastage things of that particular farm is going to keep there. कूड़े कचरे को उस गड्ढे में डाला जाता था. सो जो गड्ढा था उसमें जितने भी आश्रम के कूड़े कचरे थे वो सारे आकर डाले जाते थे. छूटन और साग के कचरे से सुंदर खाद बन जाती थी. इस तरह आश्रम को साफ सुथरा रखा जाता था. सो ये जो गड्ढा खोदा जाता था, इसमें कूड़े कचरे डाले जाते थे. इससे क्या होता है कि हम जब खाते हैं, whenever we are taking food, whatever the things left, apart from that, whenever we are peeling the vegetable, so those items, when you just decompose it in a big hole, what happened? Some it will form with a good these are good for the crops and plants. So ये जो खाद बनते थे, ये सारे पेड़ पौधों के लिए अच्छे रहते थे और इस हिसाब से भी आपका आश्रम भी साफ सुथरा रहता था और दूसरी तरफ ये कूड़े कचरे का पूरा सही में उपयोग होता था. केलनबेग नामक सत्याग्रही पादरियों के मठ में जाकर चप्पल बनाना सिखाए. उन्होंने दूसरों को भी यह कला सिखाई. वहां जो चप्पल जरूरत से ज्यादा बनते थे, वे मित्रों के बीच को बेचे गए थे. सो केलनबर्ग एक आदमी था. He was a person who learned how to make चप्पल from Padri. So after that,
what happened after learning this how to make chappals, he also trained other people who were staying inside that Tolstoy farm. Then they together started making up chappals. So sometimes what happened, more than the requirement, they made lot of chappals. So what they have to do, they will go and send those chappals to the friends. गांधी जी ने सभी धर्मों की किताब इकट्ठी कर रखी थी। उन किताबों की सहायता से बच्चों को पढ़ाते थे। गांधी जी टॉल्स्टॉय फार्म की हर याद को मीठी बताते हैं। So apart from that, गांधी जी kept all religious books. From all religion, he collected all books, and he kept together all these books, and with the help of those books, he taught to the children who are there inside this Tolstoy farm. And Gandhiji has so many sweet memories of this Tolstoy farm, whatever he described inside this particular prose. I hope, children, you understood the summary of this Tolstoy farm. Now let's see what are the question answers, and I will tell you which are important questions. प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्यों सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया? क्यों आरंभ किया? क्योंकि जब गांधी जी मुकदमे की पैरवी के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका, वहां उन्होंने क्या देखा कि अंग्रेज जो तभी शासन कर रहे थे, वो प्रवासी भारतीय पर बहुत सारे अत्याचार कर रहे थे, और उनके अधिकार के लिए, प्रवासी भारतीयों को उनके अधिकार दिलाने के लिए गांधी जी ने वहां पर सत्याग्रह का युद्ध आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या है? क्या नाम है? टॉल्स्टॉय फार्म। टॉल्स्टॉय फार्म आश्रम की जमीन कितने एकड़ की थी? ये दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये 100 एकड़ की थी, 100 एकर्स। आश्रम में कौन कौन से पेड़ थे? आश्रम में नारंगी, एप्रिकॉट, प्लम, ये सारे फलों के पेड़ थे। गांधी जी ने आश्रम में क्या नियम बनाकर रखा था? As I told in the summary that some rules and regulation had to be followed by each and every person who are residing inside that farm. तो गांधी जी ने यह नियम रखा था कि पहला नियम, आपका फर्स्ट नियम was that नौकरों से भी कोई भी कुछ काम नहीं करवाया जाएगा, चाहे ये मकान बांधने का काम हो या फिर कोई अलग सा खेती या फिर अलग सा कोई काम हो। आश्रम में कौन कौन रहने के लिए आने वाले थे? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात, मद्रास, आंध्र और उत्तर भारत के लोग आश्रम में रहने के लिए आने वाले थे। आश्रम में रहने वाले कितने धर्मों के थे? आश्रम में हिंदू, मुसलमान, फारसी, ईसाई धर्म के लोग रहते थे। मांसाहार के संबंध में गांधी जी का क्या विचार था? So what was is a particular statement given by Gandhi ji on this non-veg eating? What was his suggestion or comments on this non-veg eating? ये गांधी जी का मांसाहार के संबंध में ये विचार था कि it should be good if no one eat non-veg inside this farm. तो उनका ये विचार था कि ये अच्छा होगा यदि कोई मांसाहार यहाँ पर ना खाए और आश्रम में मांसाहार को स्थान ना दिया जाए। प्रेम का सहायक कौन होता है? प्रेम का सहायक, प्रेम मीन्स लव। So who is going to help for this love? परमात्मा। परमात्मा means God. So परमात्मा प्रेम का सहायक होता है। मांसाहार की समस्या गांधी जी ने कैसे हल किया? So as I told in summary that
most of the people they are very interested to took non-veg, but Gandhiji was not was not supporting these things, because he himself was not taking non-veg. So apart from that, some issues also there. So आश्रम वासियों ने जब आश्रम वासियों से गांधी जी बात करते हैं इस मांसाहार भोजन के संबंध में, सब मांसाहारी भोजन छोड़कर निरामिष भोजन खाने के लिए या शाकाहारी भोजन खाने के लिए सहमति दे देते हैं. And by discussing all these things, Gandhi is motivating other people to take the vegetarian food. प्रागजी देसाई कैसे आदमी थे? प्रागजी देसाई टॉल्स्टॉय आश्रम में रहने आए थे. उन्होंने अपने जीवन में कभी धूप जाड़ा नहीं सहा था. मतलब that means प्रागजी देसाई was a very well established person, and he never faced any difficulty, he never struggled. You can say that he never worked in a heavy sunny climate as well as heavy winter. धूप और जाड़ा उनको पता ही नहीं था, क्योंकि वो बहुत सुख सुविधा में रहते थे. मकान बनाने के काम में कौन कौन लगे? आश्रम में रहने के लिए जो आए वे सभी मकान बनाने के काम में लगे. So whoever came to that farm to stay, all gave their effort to make the buildings. And the name, some famous names are Kellenbeck, बिहारी, प्रागजी देसाई, जोसेफ रायपन. ये सब इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत योगदान किए मकान बनाने के लिए. जोसेफ रायपन का हाल कैसा था? व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ जोसेफ रायपन इनसाइड द फार्म? जोसेफ रायपन अधिक कठिन परिश्रम कर नहीं सकते थे, लेकिन टॉल्स्टॉय फार्म में वे मेहनत करने लगे. वे कमजोर थे मगर फार्म में आकर सशक्त हो गए. So this is Joseph Raipan. He couldn't do hard work. He will do some small works, but when he came to this farm, he did hard work, and initially he was very weak, but later on doing this hard work, he make himself very energetic and powerful. सैर करने के लिए कौन सी व्यवस्था थी? सैर मीन्स टू ट्रैवल टू रोम हियर एंड देयर फॉर जॉलीनेस. सो सैर करने के लिए जोहान्सबर्ग जाने की जो भी इच्छा करते वो सप्ताह में एक बार या 2 बार जाते थे, और दैट टू वो पैदल जाते थे. दे हैव टू गो बाय वॉक टू जोहान्सबर्ग एंड इन द सेम डे दे हैव टू रिटर्न. आश्रम में कूड़े कचरे और पाखानों की कैसी व्यवस्था की गई थी? पाखानों मीन्स टॉयलेट. आश्रम में कूड़ा कचरा एक गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है. उसमें they used to make a big hole here. They have to dump all the garbage. After that they have to dump some soils, and they have to fertilize it. Then apart from that, whatever the left food items and green leaves, they also fertilize it for the plants. आश्रम के पाखानों को साफ करने का काम प्रत्येक कुटुंब को स्वयं करना पड़ता था. So whoever going to use the toilet, they have to clean their own toilets. जूते की आवश्यकता दूर करने के लिए गांधी जी कौन सी योजना बनाई थी? केलनबेक जो एक थे, उन्होंने क्या किया, पादरियों से उनके मठ जाकर चप्पल बनाने के काम सिखाए. तो उस हिसाब से क्या हुआ कि वो whenever he trained up himself to do the how to make chappals, he also after returning to that particular farm, he trained other persons. So इस तरह से सारे लोग they fulfill their need. शिक्षा की जिम्मेदारी किसने उठाई? शिक्षा की जिम्मेदारी केलनबेक और गांधी जी दोनों ने मिलकर उठाई थी.
शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयोग का परिणाम कैसा था? So, whatever Gandhiji and Kellenbeck, they give their effort, they apply some new techniques, and new. So, how? What are the result of these things? So, शिक्षा क्षेत्र में जो सारे प्रयोग किए गए थे वो सारे सफल हुए थे. All the efforts are very successfully executed. लड़कों ने कभी असहिष्णुता नहीं दिखाई दी, वे एक दूसरे के धर्म को आदर करना सीख गए थे. सो देयर इज नो conflict between the boys and they respect each other, they respect each other's religion. So it was a very healthy atmosphere there. सभी स्तर उत्तर लिखिए. ये जो रोमन लेटर 3 है, यहाँ पे आपको 4 marks, it will come as a 4 mark question, and you have to write in 5 lines, minimum 5 line answer, and that answer should cover up your all the gist point or particular points. टॉल्स्टॉय फार्म की बनावट कैसी थी? So you have to describe the structure of Tolstoy farm. So like how much of land needed, what is the construction area, then what are the things available inside this. So you have to Tolstoy farm. जमीन की जमीन 100 एकड़ की थी. उसके बाद इसमें छोटा सा मकान रहता था. वहाँ नारंगी, एप्रिकोट और प्लम की फलों के पेड़ भी थे. छोटा सा झरना भी था और उस झरने से स्वच्छ पानी, जो कि क्लियर वाटर होता है, वो बहता था. वो पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और रहने के स्थान से वह कई 600 गज दूरी पर था. पानी कावड़ों से लाना पड़ता था. टॉल्स्टॉय फार्म के नियमों को समझाइए. सो as I told earlier that no servants should work. नौकरों से किसी भी प्रकार काम नहीं करवाया जाएगा. All should clean that toilet. पाखना साफ करने का काम सभी प्रत्येक कुटुंब करेंगे. स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग-अलग सा कमरा रखा गया था. Then सेल करने के लिए उन्हें हफ्ते में यानी वीकली दे हैव टू ट्रैवल वंस टू जोहान्सबर्ग एंड दे हैव टू ट्रैवल बाय वॉक. उन्हें पैदल जाना पड़ता था और उसी दिन लौटना पड़ता था जोहान्सबर्ग से. और भोजन जो खाते थे वो लोग, वो बिल्कुल सादा होता था. इतना मतलब बहुत तेल मसाला जैसे डाल के हम बनाते हैं शाही पकवान, ऐसे नहीं होता था. नॉर्मल सा खाना होता था और सभी लोग एक पर्टिकुलर टाइम फॉलो करते थे खाना खाने के लिए. धार्मिक लोगों के लिए गांधी जी ने कौन सी योजनाएं बनाई थी? टॉल्स्टॉय फार्म में कई धर्मों के लोग रहते थे, मतलब मुस्लिम, हिंदू, फारसी, ईसाई. सो सभी के लिए जो उनके रिलीजियस से रिलेटेड करता है किताब, सभी को था वहाँ पे. फारसी लोगों को एक अवेशता पढ़ने की इच्छा थी. एक खोजा बालक था, उसके पास अपने धर्म संबंधी एक छोटी सी किताब थी. गांधी जी उसे पढ़ाते थे. और मुसलमान और फारसियों के लिए गांधी जी ने भी कुछ बुक्स कलेक्ट किए थे. उन्हें सारे गैदर करके उन्हें पढ़ाते थे. हिंदू धर्म के तत्व भी गांधी जी पढ़ाते थे. As a total, you can tell that though in that farm so many religious peoples are staying, so Gandhiji collected all the religion books, and Gandhiji taught each and everyone. मांसाहार रहित आश्रम चलाने में गांधी जी कैसे सफल हुई? That means how Gandhi ji became very successful to manage this vegetarian farm. मांसाहार रहित, रहित means without. So मांसाहार means मांस plus आहार. मांस means flesh, आहार means भोजन, food. So without non-veg, how Gandhiji managed this farm and how he get success. गांधी जी का अभिप्राय था
कि यदि आश्रम में मांसाहार को स्थान ना दिया जाए तो ये अच्छा होगा. So Gandhiji was not taking non-veg items, and he is also not favoring to take this non-veg. Uh, Main thing is that he was not supporting this non-veg item, first thing. Second thing is that though he has established this particular farm, and at that time also they were going through very financial crisis. There is not much more wealth available, money available for spending, or for taking the expenditure of each and every one. So in this situation, if Gandhiji allowed that whoever wants to take non-veg they can take, but how Gandhiji will manage that? Financially they are going to suffer. So Gandhiji explained all these things and discussed everything with the persons who are staying inside this farm. तो गांधी जी ये बोलते हैं कि आश्रम, वो खुद शाकाहारी थे और उसके सपक्ष में थे, मांसाहार को स्थान देना वो पसंद नहीं करते थे, फिर भी कई लोग आश्रम में मांसाहारी थे, उन्हें मांसाहारी भोजन गांधी जी नहीं दे सकते थे, क्योंकि गांधी जी की जो अवस्था थी, आर्थिक परिस्थिति थी, वो कुछ अच्छी तरह से नहीं थी, क्योंकि तभी तभी आश्रम शुरू हुआ था और इतने पैसे भी नहीं थे, तो आश्रम वासियों को सब कुछ उन्होंने अच्छी तरह से समझाया. तो पहले जो स्त्री लोग रहते थे वहाँ पे, उन्हें बहुत प्यार से सब कुछ समझाया, तो उन लोगों को समझ में आया और वो लोग मान गए कि नहीं, हमें मांसाहारी नहीं होना है. और बाकी फिर बाद में जब सारे पुरुष लोग यानी जेंट्स लोगों को समझाया तो वो भी समझ गए. आश्रम में पाठशाला की व्यवस्थाएं कैसे थी? आश्रम में जो रहते थे उन्हें भी एजुकेट बनाना था, तो आश्रम में शिक्षा का भार केलनबेग और गांधी जी के ऊपर था. पाठशाला दोपहर के बाद का समय था, दैट मीन्स आफ्टर midday they started their classes. So early morning they have to do work. सुबह मजदूरी करके थक जाते थे, इसलिए पाठ पढ़ते समय थकावट महसूस करते थे. आलस्य भगाने के लिए बच्चों से खेलते थे. वहाँ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी. गांधी जी के सभी धर्मों की किताबें संग्रहित करके रखे थे और सारे धर्म के विषय में चर्चा होता था, और सब एक दूसरे के धर्मों को आदर करते थे और सब सहिष्णु बन गए थे. दैट मीन्स दे आर वेरी कैपेबल टू टॉलरेट ऑल द थिंग्स. खाना पकाने और आश्रम को साफ सुथरा रखने की व्यवस्था कैसी थी? खाना सारे बहन लोग पकाते थे और कूड़ा कचरा झूठन ये सब एक गड्ढे में डाला जाता था. दिस क्वेश्चन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड. सत्याग्रही कुटुंबों को उद्यमी रखने की व्यवस्था कैसी थी? गांधी जी टॉलस्टॉय आश्रम के सत्याग्रही कुटुंब मीन्स family members. That ashram is just like a family who are staying. They are all family members. उन्हें उद्यमी रखना, सब गांधी जी उद्यमी रखना चाहते थे, मतलब everyone should work. Nobody should be lazy and everyone should be active, energetic. It was the mission of Gandhi ji. केलनबेग पादरियों के मठ जाकर चप्पल बनाने के काम सीख कर आए, तो वहाँ के उसके बाद आश्रमवासी सभी चप्पल बनाना सीखे. बहनों ने खाना पकाती थी जो होते थे, कुछ लोग बर्तन साफ करते थे, कुछ लोगों को जोहान्सबर्ग जाना था हफ्ते में एक बार, और सब लोग अपने पाखाना स्वयं साफ करते थे. इन व्यवस्थाओं के कारण सत्याग्रही कुटुंब सारे उद्यमी रहे, पैसे भी बच जाते थे, because if they are allowed to clean toilet and do all these things from other outsiders, then they have to spend some money. In this way also they save the money, and everyone will be independent. They don't depend on any other. They do their own work. They are energetic, and they are very they are feeling very free.
संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए. Usually this question will come 4 marks. So one line will be given to you. You have to write with the introduction and explanation. So how to write? स्त्रियों और पुरुषों को अलग अलग ही रखा जाए. So they will give you one line. Then you have to write संदर्भ. संदर्भ में क्या लिखना है कि this particular statement is taken from which lesson and who has written this and what is the intention of writing this particular line. Then you have to explain. So यहाँ पर यह वाक्य टॉल्स्टॉय फार्म नामक पाठ से लेकर दिया गया है. यह महात्मा गांधी का लेख है क्योंकि इसे महात्मा गांधी जी ने खुद लिखा है. महात्मा गांधी एक मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. उन्होंने जो भी देखा प्रवासी भारतीयों के को अपमानित होना पड़ता है सरकार के द्वारा, उन्हें उनके अधिकार नहीं मिलते, तो उसके बाद वो सत्याग्रह करने के लिए और उन प्रवासी भारतीयों को उनकी अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन चलाते हैं. उसी दौरान वो एक आश्रम बनाते हैं जिसका नाम टॉल्स्टॉय फार्म रखा जाता है और उस आश्रम के बारे में लिखते हैं. और दिस पर्टिकुलर लाइन वहीं से लिया गया है. तो व्याख्या आप कैसे लिखेंगे? व्याख्या एक हेडिंग देके लिखते हैं. गांधी जी के टॉल्स्टॉय फार्म नामक आश्रम में रहने के लिए कई सत्याग्रहियों के परिवार आए. सो as I told, to participate in this great mission with Gandhiji, so many persons came along with their family. So whenever all came, they have to stay with somewhere. That's why Gandhiji decided to make a farm. After that, whatever the rules, regulations allotted to them, how the female persons will be staying separately, how the male person has to stay separately, different of buildings will be constructed for them. सो स्त्रियों और पुरुष साथ साथ रहेंगे तो पारिवारिक बातों में समय बीत जाने का डर था. Why Gandhiji separate this? You can think that they came as a family. So why Gandhiji separate? Because if Gandhiji allowed everyone to stay with their family, so the main they will diverted from their main motto or main mission. The main mission was that giving rights to the Indians who were staying in South Africa. That's why कोई अपने लक्ष्य से ना भटके, इसलिए पुरुष और स्त्रियों को उन्होंने अलग कर दिया. कोई पारिवारिक बातें नहीं होगी, कोई पारिवारिक जीवन नहीं बिताएगा. सबकी लक्ष्य यही होगा कि यहाँ पे जो भारतीय रह रहे हैं, प्रवासी भारतीय रह रहे हैं साउथ अफ्रीका में, उन्हें कैसे उनकी अधिकार दिया जाए. मैं उनको यहाँ आने से रोक नहीं सकता. So this sentence like I told you, संदर्भ कैसा लिखना है, same type you have to write. Thing is that here only the content will be changed. मैं उनको यहाँ नहीं आने से नहीं रोक सकता. So here Gandhi is telling about those Indians who are coming to fight against the government of South Africa at that time with Gandhiji. तो वहाँ जब वो लोग सारे आए, कैसे गांधी जी स्वयं शाकाहारी थे, वो लोग मांसाहारी थे, क्योंकि वो अलग अलग से इलाके से या फिर अलग अलग क्षेत्र से आए थे, अलग अलग धर्म के थे. वो सारे, कोई मांसाहारी था, कोई शाकाहारी था, तो सबको एक करके गांधी जी को चलना था. इसीलिए ये जो मांसाहार का समस्या था, कैसे उन्होंने समाधान किया, ये सब कुछ आपको लिखना है. उनके सामने मैंने मकान संबंधी असुविधा, धनाभाव और अपने व्यक्तिगत विचार, इन तीनों बातों को रख दिया. सो ये वही मांसाहार रिलेटेड थिंग है, जहाँ पर गांधी जी सबको बताते हैं कि अभी हमें मकान बनाना है, हमारे पास कुछ धन नहीं है, और व्यक्तिगत विचार रिगार्डिंग नॉन वेज. सो एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन.
अगर हम मेल का सदुपयोग करना सीख लें तो लाखों रुपए की खाद बचा लेंगे और स्वयं अनेक रोगों से बच जाएंगे. So in this sentence here particularly Gandhi ji was explaining, this line was telling about how to utilize the garbage in a proper way, how to fertilize them, how to make the fertilizer from that waste one. So जितने भी कूड़े हैं उन्हें सब कुछ एक गड्ढे में डाला जाता था, उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता था. सो इससे होता था क्या है कि आपका चारों तरफ क्लीन रहता था. सो ऑल योर एनवायरनमेंट अराउंड यू विल बी क्लीन. आपके आसपास में कोई कूड़ा कचरा नहीं था. आपका आश्रम टॉलस्टॉय फार्म पूरा क्लीन होता था, साफ सुथरा रहता था. और दूसरा चीज ये होता था कि फार्म साफ सुथरा होने से किसी को स्वास्थ्यगत समस्या यानी किसी को बीमारी नहीं होती थी, कोई बीमार नहीं पड़ता था. तो इस हिसाब से दो काम हो जाते थे, कोई बीमार नहीं पड़ता था और कोई इस मेल का सदुपयोग हो जाता था. तो इसे आपको विस्तृत भाव से लिखना है. मेरे कई चेले इस कला में मुझसे आगे बढ़ गए. तो यहाँ पे गांधी जी लिखा है कि जो चप्पल की जरूरत थी, चप्पल सबको चाहिए था और चप्पल बहुत महंगे थे. इट वॉज वेरी कॉस्टली. सो केलनबेग ने कैसे जाकर पादरियों के मठ से जाकर चप्पल बनाना सीख लाए और उसे भी वहां पर आश्रम में आके सभी को सिखाया. तभी तो ये एक पैसे के हिसाब से सबने बनाया और जो ज्यादा बन जाते थे उसे लाकर उन्होंने वो लोग सारे बेच देते थे और उससे वो कुछ उनकी भी कुछ कमाई हो जाती थी और उस कमाई से भी आश्रम का खर्चा चल जाता था. इस हाल में अकेला शिक्षक क्या कर सकता. यहाँ पर रिगार्डिंग द एजुकेशन गांधी जी डिस्क्राइब्स हियर. टॉलस्टॉय आश्रम में रहने वाले को बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था, उनके रीजनल लैंग्वेज और तेलुगु जो बोलते थे उन्हें कैसे पढ़ाया जाता था. शिक्षक वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो गांधी जी और केलनबेग ने मिलकर कैसी उन्हें ना कि धार्मिक शिक्षा दी बल्कि मातृभाषा और सब कुछ सिखाया और जीवन में सहिष्णु होना, सब कुछ जितने बड़ी मुश्किल आए उसका कैसा सामना करना, सब कुछ बच्चों को उन्होंने सिखाया था. और यह तो मेरी अपरिग्रही आत्मा के लिए असह्य हो जाता था. तो टॉलस्टॉय फार्म के सारे जो भी जितने टॉलस्टॉय फार्म में जितने समस्या आए और उसे गांधी जी ने जिसे साधन जुटा के सब कुछ समाधान किया, ये सारी बातें आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. मधुर स्मृतियों से शिक्षा की स्मृति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है. So here in this line you have to describe particularly regarding education, how Gandhiji educated those students and how Gandhiji success to establish the good to create good human beings through his education you have to describe. वाक्य में प्रयोग कीजिए. Here some sentence you have to make with this particular word. संकटापन दशा रखना. तूफान से बाधित इलाके के लोगों ने सरकार के सामने अपनी संकटापन दशा रखी. संकटापन मतलब जो असुविधा में है, situations are very crucial, critical. उपस्थित होना. स्कूल के वार्षिक उत्सव में करीब 1,500 लोग उपस्थित थे. उपस्थित मीन्स प्रेजेंट. जाहिर करना. दिल का गम दिल में ही रहने दो, जाहिर मत करो. जाहिर करना मीन्स एक्सप्रेस. सो whatever the sorrow is there inside your heart, you have to keep inside you. Don't express in front of others. जिम्मे ले लेना. प्रदर्शनी में कक्षा को सजाने के जिम्मे मैंने ले लिए. जिम्मे लेना मीन्स टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी. श्री गणेश करना. आज मुख्यमंत्री पुल निर्माण का श्री गणेश करेंगे. श्री गणेश करेंगे मीन्स इनॉग्रेट और शुभारंभ जिसे हम बोलते हैं. एकत्र करना. गैदर. बिखरे पत्तों को एकत्र करो. साबित होना. प्रूफ.
You have to prove something. पुलवामा घटना में साबित हुआ कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है. साबित होना means prove करना. So this is regarding all your first prose, Tolstoy form and the question answers. So I discuss each and every questions. I hope children you understood. Uh, Thank you. Thanks for watching my channel. Please subscribe, like and share. Thank you.